Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are solving board question of retirement of fund. HSC board 2019 question is that. Following is the balance sheet of Dheeraj, Sonam and Simran, who were sharing profit and loss in the proportion of their capital. Balance sheet as on 31st March 2016. Plant and machinery 60,000, land and building 1,65,000, stock 36,000, debtors 36,000, RDD less 3,000 equals to 33,000. Bank balance was 51,000. Liability capital of Dirshri 1,50,000, Sonam 60, Simran 90,000. Sundry creditor payable was 45,000. Simran retired from the business on 31st March 2016 and the following adjustments were agreed. Stock is to be valued at 92% of its book value. Number 2, RDD is to be maintained 10% on debtors, sundry debtors. Number 3, the value of land and building to be appreciated by 20%. Number 4, the goodwill of the firm be fixed at 36,000 and Simran's share in the same be adjusted in the account of continuing partners in the gain ratio. Number 5, the entire capital of the new firm be fixed at 4,80,000 between Dhirshri and Sonam in the proportion to their new profit sharing ratio, which is fixed as 3:1 by making adjustment for difference in cash. Now what to prepare? Prepare profit and loss adjustment account, partners capital and balance sheet after retirement of Simran. Okay. Now we will start with the solution. As in a question, stock is to be valued at 92% of its book value. It means 8% we have to deduct. It means 8% we have to depreciate. Okay. So here is the calculation. Stock value was 36,000. We have calculated 8%. We got 2,880. So put it the balance sheet. Here is the solution of stock. Stock 36,000. Reduce 2,880. So here the stock value has been reduced. So the second effect will become to profit and loss adjustment account and debit side to stock account 2,880. Next was RDD 10% on debtors. So debtors value was 36,000. 10% एक ज़ीरो हटाएंगे तो आपको मिलेगा 3,600. लेस करेंगे 3,600 वैल्यू वी विल गेट 32,400. Okay. Now in a question already RDD was given, that was 3,000. Here is the question I am showing again to you. RDD was 3,000. Now 36 minus 3 is equals to 33,000. Now maintenance was 10%, so the value become 3,600. Now the value of debtor is 32,400. So the second effect of profit and loss, the value will be different of 33,000 and 32,400, that is 600. So we will transfer 600 in profit and loss account, debit side. So here you can see the RDD account is there, the value is 600. Okay. Building values appreciate by 20%, land and building appreciate by 20%. इन्हें इंक्रीज करने बोला इन्हें एसेट. सो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 1,65,000. उसका 10% आप देखेंगे तो 16,500 होगा. उसी का डबल यानी 20% होगा 33,000. उसको ऐड करना है तो टोटल होगा 1,98,000. ओके. अब इंक्रीज इन एसेट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 33,000.
Okay. Next question. The goodwill of the firm fixed 36,000. Simran's shares in the same adjust in the account of continuing partners in the gain ratio. So we have to calculate Simran's share of goodwill. For the same, we have to know the ratio. So, as in the question, it is mentioned the ratio of the partners was according to their capital. The capital was 1,50,000, 60,000, and 90,000. Now, if we will calculate 1,50,000, 60, and 90, total is 3 lakh. So, accordingly, we will divide the same. So, we will get the new ratio. 1,50,000 divided by 3 lakh. 0, 0, 0, cancel. So 15 upon 30 will remain. 15 on the 15. 2s are 1 upon 2. Now 60,000. Other partner was 60,000 value divided by 3 lakh. 0, 0, cancel. 0, 0, cancel. So here is the value 6 upon 30. 6 1 the 6 5. So ये लॉन्ग प्रोसीजर है, ये शॉर्ट प्रोसीजर में बताऊँ. 15:6:9. ये 15 6 और 9 का सा तो जो 1,50,000 था, तो 30 डिडक्ट करो, 60,000 का जो जीरो से कंप्लीट डिडक्ट करो, 90,000 का जीरो से कंप्लीट डिडक्ट करो, आपको रेशियो मिलेगा 15:6:9. अब ये तीनों कौन से टेबल में और डिडक्ट हो सकते हैं? 3 5 3 2 3 3 यानी सेम टेबल में. तो ये अभी नया रेशो मिला 5:2:3, ये इनका रेशो. तो अगर तो जो सिमरन है वो सिमरन जो रिटायर पार्टनर है उसका रेशो 3 है, नंबर 3 है उसका. तो 36,000 इंटू 3/10 कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10,800. उसी बेस पे गुडविल की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 10,000 सिमरन की कॉलम में 10,800 और रिटायर ऑफ रिटर्न ऑफ गेन रेशियो बोला है गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ गेन रेशियो 9,000 और 1,800. मेरी में जो रेशियो था उनका 5:1 न्यू गेन रेशियो वो हिसाब से कैलकुलेट किया 9,000 और 1,800. सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे. 33,000 क्रेडिट का वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें से जो स्टॉक और RTD का है वो अमाउंट माइनस कर देंगे, बैलेंस मिलेगा 29,520 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेशियो 5:3. हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. पार्टनर्स का वैल्यू 14,760, एक का है 5,904, एक का है 8,856. ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट द वैल्यू सेम 14,760, 5,904 और 8,856. अब ये तो नॉर्मली पार्टनर आपको ओल्ड बैलेंस शीट से मिलेगा. मैं बैलेंस नोट डाउन जो उनका कैपिटल है वो निकाल दें, ठीक है. इसको टोटलिंग एडजस्टमेंट रहेगा. द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर न्यू फर्म will be fixed as 4,80,000 between धीरश्री एंड सोनम. प्रोपोर्शन उनका दिया 3:1, तो 3 + 1 कितना होगा 4. 4,80,000 डिवाइड बाई 4 आप करोगे आपको 1 शेयर मिलेगा. ओके, तो ये आपको शेयर मिलेगा. 4,80,000 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो आपको मिलेगा 1,20,000 1 शेयर. तो एक का 3 रेशियो है और एक का 1 है, तो 1 जिसका उसको 1,20,000 मिलेगा और बाकी जो 3 है यानी 1,20,000 इंटू 3 करेंगे तो 3,60,000 रेशियो को 3,60,000. तो आप
पार्टनर्स कैपिटल में इस तरह लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन 3,60,000 और 1,20,000 सोनम के कॉलम, ठीक है। और ये आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल ऋषि और सोनम के नाम से 3,60,000 1,20,000 टोटल होगा 4,80,000। अब अकाउंट क्लोज करेंगे 3,60,000 प्लस 9,000 3,69,000 ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा 3,69,000। इसमें से 1,50,000 जो कैपिटल था ओल्ड वो और 14,760 माइनस करो तो आपको बैलेंस मिलेगा 2,04,240। ये बैंक अकाउंट में ये जाएगा बाय बैंक अकाउंट। सेम उसी तरह सोनम का कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 प्लस 1,800 तो 1,21,800 यहाँ ट्रांसफ़र करो। इसमें से कैपिटल 60,000 और 5,904 माइनस करो तो 55,896 आपको वैल्यू मिलेगा। ये बाय बैंक बोल कर आप लिखेंगे, ओके। और रहा जो रिटायर पार्टनर है सिमरन, उसका ये क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे आप तो आपको 1,09,656 मिलेगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे सेम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, ये टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, ओके। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग रफ बैंक अकाउंट बताता हूँ। टू बैलेंस करके 51,000 जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से बाय सिमरन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में से बैलेंस वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करेंगे 1,09,656। और ये गिरीश और सोनम का वैल्यू था यहाँ पर लिखा हुआ वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे गिरीश, ओके। ये तीनों का कैलकुलेट किया 3,11,136 वैल्यू आया। 3,11,136 में से जो 1,09,656 माइनस किया था बैलेंस वैल्यू 2,01,480 लिखेंगे बाय बैलेंस। वो जो है बैंक बैलेंस खोलकर न्यू बैलेंस शीट में आएगा 2,01,480, ओके। यहाँ पर एंटर हो गया। टोटलिंग करना है 1,98,60 33 और 32,400 और 2,01,480 आप करेंगे तो 5,25,000 यहाँ मिलेगा। और लाइबिलिटी में जो 4,80,000 मिला था वो और प्लस क्रेडिटर 45,000 तो सेम वैल्यू यू विल गेट 5,25,000। तो इस तरह सॉर्ट आउट करना है। होप सो ये आपको समझ में आया है, ओके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।